this topic needs those terms, those things. So you should be very clear what is an liability and what is a next. तुम कुछ भी खरीदने को जाओ, it's always good to think क्या ये चीज मेरे पॉकेट को खाली करेगा या भरेगा. Those who are young, जैसे I don't know, विशाल है, रेमंड है, गर्लफ्रेंड लाइबिलिटी है, एसेट है. So you know what's the answer. Like if it is taking money from your pocket, it is a liability. भाई एक और चीज है, हर चीज पैसे से नहीं तोल सकते. I want to be very clear. कल को ये मत बोलना है कि यार बच्चे भी again secular terms में anything that takes money from you liability. So always millionaires, they always focus on assets. Now how to develop these assets, I will share again. Assets को कैसे develop करें और liability कैसे कम करें, we will learn in this. Few other funds. Emergency fund. How many of you have heard about this term, emergency fund? It is very good to have. It's one of the saying. It is there. Always have money for your rainy day. रेनी डे मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, साल में कभी भी होती है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इमरजेंसी. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इमरजेंसी फंड? अगर नहीं मालूम है तो it's I'm so sorry. Everyone should have emergency fund. I'll just show quickly by one thing. There is little max involved in it. Emergency fund. Suppose your monthly expenditure, little max is involved because economics is there. Monthly expenditure अपन ले लेते हैं, चलो 50K. अगर मेरे पास 50,000 रुपीज है, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 में हो जाता है. योर मंथली एक्सपेंडिचर इज 50,000. ठीक है, 50,000 में मतलब तुम्हारा EMI, तुम्हारा रेंटल, तुम्हारा खाना पीना सब 50,000 में मेरा काम हो जाता है. तो if your monthly expenditure is 50,000, so what should be your emergency fund? Your emergency fund should be 6 months of 50,000. 50,000 into 6 months कितना होगा? 3 lakh. So at any given point of time, तुम्हारे पास जो तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर है उससे 6 गुना 6 महीने तक तुम्हारा पास वो राशि हमेशा होनी चाहिए. इमरजेंसी फंड इज लाइक इन लिक्विड, इन कैश. ये नहीं कि मेरे पास प्लॉट है 6 लाख, वो नहीं है. 3 लाख रेडी कैश तुम्हारे पास हमेशा होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर अपॉन योर मंथली. अब तुम बोलो कि मेरा भाई एक्सपेंडिचर 10,000 ही है, तो इमरजेंसी फंड कितना होगा? 10,000 into 6, it's 60,000. 60,000 रेडी कैश should always be there, because कुछ भी हो सकता है. 6 महीने तक जॉब नहीं है तो means at least you should be prepared for your 6 months. Now there is another version of emergency fund which I want you to focus, which is super emergency fund, which is for 5 years. That is 50,000 into 12 महीने, 1 साल into 5. This is equal to 60, 60, 30. This is 30 lakh. Now अगर really if you want to have a super emergency fund, this is what you will have. US में already it is made 1 year at least, but your super emergency fund in India 5 साल के लिए तुम्हारा emergency fund set होना चाहिए. तुम्हारे पास 30 लाख in cash तुम्हारे पास होना चाहिए. 30 लाख in cash और 33. जैसे आज की तारीख में अगर मेरा if my monthly expenditure is 50,000, so I should have 30 plus 3, that is 33 lakh in my emergency fund. Now I don't know, अगर तुम्हारे पास है नहीं है, हाथ खड़ी करने की जरूरत नहीं है, और जितना भी है अगर तुम्हारे पास, बट इतना तो होना ही होना चाहिए अनटच. इसको तुम हाथ ही नहीं लगा सकते, ये तुम्हारे अकाउंट में होना ही होना चाहिए. 33 लाख आज की तारीख में. I and my wife is there, so मैं कभी कभी आइडियाज लेके आता हूँ कि यार मेरे पास बहुत अच्छा एक बिजनेस आइडिया आया है, and I always talk with my wife and discuss with my wife before starting. I hope
many of you who are married will be doing that the same thing. कुछ भी नया, अरे एक अच्छा आइडिया है, चलो डिस्कस करते हैं. तो the sensible person out of me and my wife is the wife. मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ, but my sensible partner is wife. तो वो बोलती है कि emergency fund को हाथ नहीं लगाना, उसके बाद जो तुम्हें करना है तुम करो, बट emergency fund को हाथ नहीं लगाना. So 33 lakhs I should have in my account. So अगर दीपक के पास कोई आइडिया है और अगर एलन बोलता है कि कुछ नया करेंगे, प्रज्ञा और आई थिंक द सेंसिबल पर्सन इन एलन इज आल्सो प्रज्ञा के लिए इमरजेंसी फंड को तुम हाथ नहीं लगा, बाकी तुम्हें जो करना करो. सो यू शुड हैव दिस इमरजेंसी. 5 साल के लिए तुम सेट हो. 5 साल का कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, कुछ भी नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ कमा नहीं रहे, कुछ भी नहीं, 5 साल तक विदाउट जॉब you should be financially stable. With अगर मैं जॉब करूं नहीं करूं, but I think 5 साल तक तो I can find some solution. So very simple सा टेक्निक है. जो भी तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर है इनटू 6 महीना, ये तो नहीं होना चाहिए. सुपर इमरजेंसी फंड विच इज 5 साल का तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर तुम्हारे अकाउंट. ये अगर तुम्हारे अकाउंट में है, account can be in any form, can be in, but it should be in liquid form, it should be in FDs or whatever, but it should be in liquid cash form in account. अगर ये है तुम्हारे पास, then you can take any risk in your life. You are set for next 5 years. job करो नहीं करो, but job अगर कोई भी emergency, अगर it's a rainy day, you are set for it. So emergency fund is the important. अगर तुम प्रभु का नाम ले रहे हो और बोलो कि प्रभु सब देख लेगा सब, आई थिंक इट इज अ डायलॉग ऑफ कि क्या पता, वो एक किसका डायलॉग, नवाजुद्दीन ने कहा था कि हम सब कहता है कि हम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान के भरोसे बैठे, क्या पता भगवान आपके भरोसे ही बैठा हो. सो ऐसा नहीं कह सकते कि हम भाई हम तो प्रभु में, हम तो जीसस यूथ है भाई, भगवान देख लेगा अगले के 6 महीने. नहीं, भगवान नहीं देखेगा. भगवान ने आपको दिल के साथ दिमाग भी दिया है. So you have to think next 6 months, you have to well plan. So this thing, everyone in Jesus Youth, अगर आपके पास नहीं है अभी, तो I'll tell you to have an emergency fund next 5 years के लिए at least. Emergency fund should be you should have emergency fund. So I'll just switch the screen again. Yeah, emergency fund. Now the second thing is debt is bad. कर्ज अच्छी चीज है, बुरी चीज है. कर्ज is bad. Proverbs 22:7 में लिखा है कि you are a slave of. अगर तुम एक बोरोवर, अगर तुम एक कर्जदार हो, तो तुम एक स्लेव हो, ऐसा कहते हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है कि तुमने अगर कर्ज लिया है तो डेब्ट इज ऑलवेज बैड. प्रोवर्ब्स, डूबते जाओगे. फिर यार तुम्हारा पास बस एक ही विचार होगा कि यार लोन कैसे चुकाए. प्रभु ने तुमको मतलब he has made you to enjoy your life and to do well. Now again, debt, agar you have taken it for tax purpose, I take 0 interest EMI. I take, even if I have the amount, I take debt because it helps in taxation. If that kind of thing is there, it's very good. But कुछ लोग होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड मतलब लोन ले जा रहे, बस कुछ तो लाइफस्टाइल सपोर्ट करना है तुम्हें, कितना कमा रहा है नहीं करना है, वो बस डेप्थ मतलब बस लोन के ऊपर लोन जा रहे हैं. देयर इज वन यूट्यूब वीडियो व्हिच आई लाइक वेरी मच, वेरी एक्सप्लेन्स लोन का मीनिंग क्या है. लोन का मीनिंग है लो ना. लोन का मतलब है लेना नहीं है. सो लोन, अगली बार तुम लोन सुनो, अगर कोई बोलता कि भाई एक बहुत बढ़िया स्कीम आया है, बढ़िया लोन आया है, तो उसका मतलब क्या है, लो ना, लेना नहीं है. अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर वो नहीं है, तो नहीं चाहिए अपने पास, अपन इकट्ठा करके ले लेंगे. बट इफ यू कैन, इफ यू हैव अ डेब्ट, ट्राई एज मच एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना तुम उसको निपटाओ. अगर तुम्हारे पास लोन है तो प्रिंसिपल, यू नो मोस्ट ऑफ यू गाइज हु हैव टेकन अ लोन, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, प्रिंसिपल तो कभी कम होता ही नहीं है. सो द वर्ड ऑफ गॉड बिब्लिकली आल्सो इट इज सेड कि डेब्ट इज बैड, यू आर अ स्लेव.
if you have borrowed, you are a slave to the borrower. So if possible, uh, 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 reduce your debt as much as possible. Save and invest, it's very important कि तुम बचाओ और ना कि बचाओ और इन्वेस्ट करो. अगेन इट्स अ बिब्लिकल थिंग. प्रोवर्ब्स 21:20 लिखा है. 21:20 में अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है इट्स अ फूलिश डिवोर्स ऑल दैट ही हैज. अगर अगर तुम्हारी सैलरी 10,000 है और 10,000 के 10,000 तुम उड़ा रहे हो, तो तुम, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिब्लिकल टर्म्स में तुम एक फूल हो. अगर तुम्हारी 30,000 सैलरी है और 30,000 पूरे 30,000 तुम उड़ा रहे हो, कुछ नहीं बचा रहे हो, तो तुम, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन बाइबल के टर्म्स में यू आर अ फूल. बिकॉज 21:20 में लिखा कि अ फूलिश डिवोर्स ऑल दैट ही हैज. सो अगर तुम कुछ बचा नहीं रहे हो तुम्हारे सेव में, सो अगर तुम 50,000 भी 1 लाख भी कमा रहे हो महीने का, या 2 लाख 5 लाख भी कमा रहे हो, पूरा उड़ा रहे हो, तो तुम एक स्टूपिड, एक फूलिश पर्सन हो. दैट्स व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव. कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो मैं बताऊंगा अभी. एंड वो व्हाट आर द थिंग्स. सो few of the terms, it's very good that you know all these terms. और बाइबल क्या कहता है इसके लिए. सो बाइबल कहता है कि अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 50%, 50-30-20 रेशियो है. दिस इज अगेन इन फाइनेंशियल टर्म्स में, इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, इट इज अ वेरी गुड फॉर्मूला. 50% आपके नीड, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, आपका खाना पीना, ये सब नीड है. इसके बिना तुम जी नहीं सकते. तो बिजली के बिना, पानी के बिना, खाने के बिना, रेंट के बिना, ये सब तो तुम्हारा नीड है. तो 50% तुम्हारी सैलरी हमेशा तुम्हारे नीड में जाना चाहिए. 30 है तुम्हारा वांट मतलब बाहर चलो आज KFC में खा लेते हैं, या चलो आज बाहर जाके कोई घूम के आ जाते, या चलो आज मूवी देख लेते बाहर. कि मूवी के तुम मर जाओगे नहीं, मरोगे नहीं, बट तुम्हारा वांट है, बस चाहिए भी. महीने में या हफ्ते में एक बार तो बाहर जाके खाए. अगर आज बर्गर नहीं खाया, पिज्जा नहीं खाया, तो मरोगे नहीं. दाल रोटी से भी जी सकते हो, बट स्टिल इट्स अ वांट. एट द सेम टाइम 20 इज योर सेविंग. पोस्ट टैक्स 50-30-20 का रेशियो है. 50% तुम्हारे नीड में, 30% तुम्हारा वांट में, 20% हमेशा तुम्हारे सेविंग होनी चाहिए. अगर 10,000 है तो 2,000 सेविंग होनी चाहिए, और अगर तुम्हारे 1 लाख है तो 20,000 सेविंग होनी चाहिए. नाउ अकॉर्डिंग टू, नाउ इफ यू टेक इट इन बिब्लिकल टर्म्स, अभी तुम पूछोगे टाइथ कहाँ आता है, टाइथ भी आता है. तो एक्चुअली इट शुड बी इन क्रिश्चियन, आई वुड से इट इज in Catholic terms, it should be 40-30-20 and 10. 10 is always your tithe. 10% is always. 1 लाख अगर तुम्हारा महीने का सैलरी आ रहा है, 1 लाख आते ही 10,000 तुम एक अकाउंट में डाल दो. आज आई थिंक एलन वाज सेइंग इन बिटवीन, whatever amount we get, it was not always rosy. कभी भी कितना भी पैसा तुम्हारे पास आए, 10% आते ही 10% अलग कर दो. मतलब तुम्हारा है ही नहीं वो. अगर तुम्हारा, जैसे अभी आई स्टिल रिमेम्बर कितने महीने, व्हेन 2012 में जब हम स्टार्ट ही किया था, 5-6 महीने हमारी सैलरी और कुछ आता नहीं था. और जब उसके बाद आता था, थोड़ा सा आता था. अगर जो पहली जो हमारे एक प्रोजेक्ट के आया था, आई स्टिल रिमेम्बर आई ब्रॉट इट एंड गेव इट टू वंदना, एंड 70,000 आए थे. 70,000 आते ही 7,000 हमने अलग रख दिया था. 6 महीने हमने कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास, बस 70,000 आते ही 6 महीने बाद आ रहा है. तो इट्स अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम. और आते ही 7,000 हमने उसी टाइम अलग रख दिया कि ये प्रभु के काम के लिए है, ना तेरा ना मेरा हक है. तो that's again, we were into ministry full time. So 10% tithing is very good. I'll tell you, you will never be in want अगर tithe तुम दे रहे हो तो. अगर रिलीजियसली अगर 1 लाख आ रहा है तो 10,000 हटा के रख दो, कहीं नहीं जाने वाले. ये 10,000 मतलब ना तू कपड़ा खरीदेगी, ना मैं कपड़ा खरीदूंगा, ना अपने बच्चे, किसी और के लिए यूज करके, सोसाइटी के लिए, चर्च के लिए, पड़ोसी के लिए, कुछ भी, मगर दूसरों को देंगे. ये वो 10,000 का हक मेरे पे नहीं है, ना तेरे पास है. वी विल स्पेंड इट ऑन अदर्स. कुछ भी, जैसा भी कुछ भी करेंगे, मैं खुद के लिए नहीं खर्च करेंगे. सो दैट टाइथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन टाइथिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट.
अगर आप न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से चलते हो तो इट शुड बी मोर देन दैट. न्यू टेस्टमेंट में जीसस आए थे, जीसस अबॉलिश्ड एंड ही सेड कि अगर तुम्हारे पास दो है तो एक दे दो. सो दो जो मैक्स में स्ट्रांग है, दो है तो एक दे दो, मतलब कितना 50%, 50% आपको दूसरों को देना है. अगेन अगर आपके पास 1 लाख है तो 50,000 यू हैव टू स्पेंड ऑन अदर्स. दैट्स व्हाट जीसस हैज. अगर तुम्हारे पास 2 क्लॉक है, 2 शर्ट है तो एक शर्ट दे दो. सो अगर तुम 1 लाख कमा रहे हो तो 50,000 देने के लिए तैयार रहना. और एट द एंड व्हाट ही हैज गिवन 100%. उसने फिर तो आखिरी में उसने ये भी बोला कि 50% भी रहने दो तो पूरा ही दे दो यार, पूरा ही लुटा दो. सो दैट इज द थर्ड लेवल. इफ वी आर दैट लेवल, पूरा ही निछावर कर दो. वॉट एवर यू आर अर्निंग, वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर योर लाइफ dedicate for others. So that is the ultimate. Most of the saints do that, and our ultimate goal will be that to reach there, to fully give and live for others. So ये रेशियो हमेशा याद रखना, 50-30-20. बट अपना है 40-30-20. 10% तो देना ही देना है. अगर पहला पड़ाव हो गया फिर 50 का सोचेंगे कि 50-50 देना है, और 50 भी हो गया तो फिर अपन 100 का सोचेंगे पूरा ही देना है दूसरों के लिए. So that is so 50-30-20 या 40-30-20. ये अपने जीसस यूथ में भी देखा हुआ है, बट अपने आस पड़ोस में भी हमने बहुत बार देखा हुआ है. दिस इज अ पुअर गाय. हमेशा देखना, एक जो पुअर होता है, एक पुअर व्यक्ति हमेशा शो ऑफ बाजी करेगा, हमेशा शो ऑफ करेगा. लेवाइस की जीन्स पहननी है उसको, होएगा नहीं होएगा. 8,000 की सैलरी होगी मगर 10,000 का जीन्स पहनेगा. वो 40,000 का मोबाइल लेगा. दिस इज वेरी कॉमन थिंग. एक कौन करता है शोबाजी? वो करता है जो गरीब है. ऑलवेज रिमेम्बर, जो रिच है. अभी आप मार्क जकरबर्ग को देख लो या स्टीव जॉब्स को देख लो, या किसी को देखो, ड्रेसिंग सेंस है. दे आर ऑलवेज सिंपल, दे ऑलवेज वेयर दैट इज नॉट दैट नॉट एक्सपेंसिव. मतलब 100 रुपए का टी शर्ट आ गया काफी है, 100 रुपए की आई डोंट नो आजकल क्या रेट चल रहा है, बट 800, 1000, 2000 का अच्छा. आई एम नॉट सेइंग कि खराब पहनो, बट एक दो जीन्स अच्छी ले लो, 1,500 की जीन्स ले लो, या जो भी है आजकल का रेट, पहन लो, काफी है. बट ऑलवेज रिमेम्बर, जो जितना गरीब उतना है वो उतना ही दिखाता है. मतलब अपने टोपी, गॉगल्स एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल डिवाइसेस, गैजेट्स एंड ऑल. दिस इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी. इवन इन आवर लाइफ, इवन जीसस यूथ में देखा है, अपने अपने जो लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ कुछ दिखाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ पहनते. सो इट्स अ वेरी गुड सेइंग. वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड with money we don't have to impress people we don't like. So it's always like जब पैसा ही नहीं है फिर जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं to which money we don't have to impress people we don't like. मतलब कुछ तो सोसाइटी में जिसको लेना देना ही नहीं है उन 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 लोगों को लिए इम्प्रेस करने के लिए. Now it's very important कि you dress modestly and dress nicely and dress simple. Rich will not be loud in fashion, and it will not be loud in saying. Now this is very important for financial independence. Most of us I think have active income, but let's learn a little bit about passive income also today. So incomes are always two types, एक active income, एक passive income. Now active income is वो है कि you have to work. एक्टिव मतलब you have to work, you have to do a day job, then only आपको सैलरी गिरता है. पैसिव इनकम वो चीज है, आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपको सैलरी आता है, फिर भी आपको आपको आपके अकाउंट में पैसे गिर रहा है, चाहे कैसे भी गिर रहा है मगर गिर रहा है. सो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर पैसिव इनकम, नॉट एक्टिव इनकम. एक्टिव इनकम है कि चलो आज तो काम कर रहे हो, आज तो स्कूल जा रहे हो, आज तो जॉब के लिए जा रहे हो, आज तो तुम ऑफिस जा पा रहे हो, बट अभी तो तुम 20 के हो, 30 के हो. आगे 20 साल बाद जाओगे, जा पाओगे? हाँ जा पाएंगे, मगर आई थिंक आफ्टर 50, 55, 60 यू विल नॉट बी एबल टू वर्क एज यू आर वर्किंग नाउ.
So what is your passive income? What is how will you earn without working? So you should have such strategies where you can where you will earn passively मतलब आप सो रहे हो तब भी यू आर अर्निंग. कल हाउस होल्ड हुआ था, छोटे से एग्जांपल बताऊंगा. कल हाउस होल्ड हुआ था, यहाँ मैं यहाँ था एंड ईशू बार खेल रहा था. लाइक इवनिंग था तो ईशू बार खेलता है इवनिंग 6 o'clock. मैं आई आल्सो प्ले, सो 6 to 8 खेलता है. 6 to 8 when he was playing, he does affiliate marketing. He I am already training him. He does affiliate marketing. ये जब खेल रहा था तो इसने he earned money. So that is passive income. He doesn't have to actively be present there. So ये खेल रहा था, इसने एफिलिएट लिंक्स कहीं डाले हुए थे, किसी ने क्लिक किया, किसी ने बाय किया एंड ही अर्नड. सो आप खेल रहे हो, आप सो रहे, सो मनी इज वर्किंग फॉर यू. you are earning while you are sleeping. You are earning. So today I'll share with you 7 sources of passive income. अगर आप वो कर लेते हो, I'll tell you minimum you should have 7 sources of passive income in your life. अगर आपके पास 7 sources of passive income है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम you can be a millionaire. I hope if I ask you how many of you want to be millionaire, सबका हाथ ऊपर तो जाना ही चाहिए. It's always good that everyone wants to be a millionaire. काई के लिए अगेन पैसे की भूख नहीं है, पैसे की नहीं. अगर वो पैसा अगर मेरे पास है, I am sure that प्रभु के काम के लिए हम यूज करेंगे. It will be so. It's always good. हम क्लियर है कि अगर if we earn more, it will be used for building his kingdom. So that's very good. So अब एक्टिव इनकम तो एक्टिव इनकम ऐसी चीज है कि तुम आज तुम स्कूल जाना बंद करो, आज तुम ऑफिस जाना बंद करो, क्या तुम्हें सैलरी गिरेगी तुम्हारे अकाउंट में? नहीं गिरेगी. सो अगर मैं यहाँ पर सोता रहूं तो कोई सैलरी देगा मेरे को? कोई नहीं देगा. सो यू शुड हैव सच वेन्यूज कि मैं सो रहा हूं तो भी पैसिव इनकम आते रहे. तो वो कौन से वेन्यूज है? वी कैन जस्ट से. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम. एंड as a millionaire you should have 7 sources of passive income, 7 income streams you should have. 7 sources आपके पास होने चाहिए of to be financially independent. अगर ये 7 sources ढूंढ लो, तुम 7 streams ढूंढ लो अपने. I'll just tell you few examples. I'll tell you are independent, you have won the match. Then you can use your time for God's glory, for spending time for mission. जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो. But you should have these 7 sources of income. Quickly we go through these 7 sources of income and then we'll see कि क्या क्या कर सकते हैं. FD, कितने के पास FDs है? Fixed deposits कर रखी है? Very good. Never underestimate the power of स्मॉल. एफडीज कर रखी है. 1 लाख तुम आज एफडी में डालो. पहले तो था 8-7% था, मगर आज 1 लाख अगर डालो, अब आजकल तो 6% ही है. एसबीआई का जो एफडी का रेट चल रहा है फिक्स्ड. अगर आपने 1 लाख डाला, 6,000 सालाना आपको 6,000 मिलेगा. 6,000 में क्या होगा भैया? 6,000 क्या चाहिए? 6,000 ईयरली. इफ यू डिवाइड बाय 12 इट इज 500. महीने का 500 रुपए तुम कमाओगे. नाउ क्या तुमने कुछ मेहनत की इसके लिए? कोई मेहनत नहीं किया. क्या किया? बैंक गए, एसबीआई गए, कैनरा गए, आईसीआईसीआई गए, 1 लाख डिपॉजिट किया और 6,000. मतलब इट्स अ फिक्स्ड इनकम. तुम सो रहे हो, नहा रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, 6,000 every year you will get it without. That's a passive. You will surely get 6,000. That is 500 rupees. And never underestimate the value of small. I always say this. Warren Buffett, सब जानते हैं Warren Buffett? Warren Buffett, one of the top 5 millionaires. वो उसकी एक small story है. वो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, तो लिफ्ट की तरफ बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स उसको फॉलो कर रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे. ही इज अ मिलियनेयर. सो वो जाते हैं लिफ्ट के पास जाते हैं, और दोस्तों हैव हर्ड द स्टोरी माइट बी नोइंग. लिफ्ट में जाते हैं. लिफ्ट में क्या होता है? एक 1 penny, एक 4 आना गिरा हुआ था, 1 पैसा, मतलब अपने 10 पैसा बोल सकते हैं, या 1 रुपया गिरा हुआ था लिफ्ट में.
और रिपोर्टर उनके पीछे कैमरा वैमरा लेके और न्यूज रिपोर्टर सब जा रहे हैं। वॉरेन बफे लिफ्ट में गया, ही इज वन ऑफ द टॉप 5 मिलियनियर्स, गया और सब देख रहे हैं कि क्या करेगा वो। 1 रुपए से देख लिया, रिपोर्टर्स ने भी देख लिया, वॉरेन बफे ने भी देख लिया, तो वो 1 रुपए का क्या करेगा, सब सब ध्यान से देख रहे थे। He picked up that 1 rupee. He kept it and he said, "This is the start of 1 million." 1 मिलियन की शुरुआत हो गई है। 1 रुपए को भी नेवर नेवर अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 1 रुपया। अगर अगर तुम्हें लग रहा है कि 1,05,000 रुपए महीना कुछ नहीं है, FD is the most most easiest way to have passive income. FDs करो, जितनी कर सकते हैं करो FDs. So that's very important. Promise. I don't know how many of you are post office किसने सुना है मंथली इनकम स्कीम? इट्स मंथली इनकम। अगर 9 लाख डालो आप, अगेन पैसा पैसा कोई बनाता है, हमेशा रखना। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स मनी मेक्स मनी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। never work for money but let the money work for you. So आपका जो पैसा है आपके लिए काम करेगा। So प्रॉमिस इस मंथली इनकम स्कीम है। अगर आप 9 लाख डालते हो तो 5,700 एवरी मंथ यू विल गेट। सो दैट इज अ रेंटल। इफ यू आर इन रियल एस्टेट, इट इज वेरी गुड दैट यू हैव रियल एस्टेट। अगर तुम्हारे पास कोई रेंटल एक 1 BHK है स्टूडियो, अगर तुम्हारे पास है तो कहीं कहीं रेंट पे लगाओ, अगर नहीं है तो स्ट्राइव फॉर इट। मेक एक 1 BHK भी खरीद सकते हो तो खरीद लो, और उसको किराए पे लगा दो। या तो 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है। I'll quickly go through. I think we are running short of time, so you should have rental. That is the third. As a millionaire, you should have this rental. Ads, apps के ads. अगर ads, if you are a good in coding, you should have put ads in your thing. If you are a content creator, अगर आप YouTube में वीडियोस बनाते हो तो उसमें भी ads डाल सकते हो उसमें। और I 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरे पास ना you would imagine कितना एक सेंट या कभी 50 सेंट आते थे पूरे महीने में। बट नेवर अंडर एस्टिमेट, आज की तारीख पे जितना एड्स की रेवेन्यू आता है, इट्स ह्यूज। इट्स ग्रोन एक्सपोनेंशियल। फ्रीलांसिंग, डे जॉब करो, अपने जो प्रोजेक्ट्स के जो डे जॉबिंग है, आपके 9 to 5 जॉब है वो करो, उसमें तुम्हें आना। उसमें एफिलिएट लिंक्स, Amazon में बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स है। व्हाट आई थिंक some of you have already started it, but it's good that you are selling some things online, which is again a source of income. Mutual funds and stocks, those who are very good in that, please invest. So these are the 7 sources of income. Never put all the eggs in one basket. You should have 7 sources of income. This is just 7 stores. You can have more more sources also. There are many other sources. YouTube creator, content creator. You can be a Uber driver, part time है तो Uber driving करो, कुछ भी करो, या किसी को एम्प्लॉय करके किसी को दो। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज, बट एटलीस्ट मिनिमम 7 तो होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास अगर सिर्फ एक जॉब पे तुम टिके हुए हो, आई टेल यू, आज जॉब है कल चली जाएगी। वेर आर आज की तारीख में तुम्हारे पास 7 जगहों से तुम्हारी इनकम, 7 जगह से हर महीने तुम्हारे सैलरी तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। वाओ, इज इट नॉट गुड? इज इट? ये तो शुरुआत है। दिस इज the starting of becoming a millionaire or becoming financially stable. फिर तुम बोलो कहाँ प्रोग्राम है चलेंगे, कहाँ मिशन है चलेंगे, किसको हेल्प करना है चलेंगे, कितना डोनेट करना है देंगे, बट फाइनेंशियली खुद तो स्टेबल बनो। when you are financially stable, you can help others, you can do mission work. but आज की तारीख में please note this, you should have 7 sources of income. job, ads, rental, जो भी है तुम्हें करना ही करना है। and think I think we are running short of time, so I'll just एक minute. Chat. Okay, I think we'll take it. Yeah. हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं। So I'll it's already 12 o'clock, so I'll just find up. Compound interest is little more economical term है, so
जल्दी से बता देता हूँ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप साल का 1.5 लाख डालते हो, अगेन इट्स ऑल सेक्युलर बट प्लीज बेयर विथ मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। कंपाउंड इंटरेस्ट जो स्टार्ट अर्ली सेविंग, आपको तो साल का हमेशा 1.5 लाख सेव करना ही है। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने अगर 15 साल के लिए अगर 1.5 डाला तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल you have invested 22 lakhs, बट मेच्योरिटी में अगर 15 साल में 22 लाख आपके 44 lakhs हो जाते हैं। और अगर आप 5 साल और बढ़ाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जस्ट इमेजिन डबल होने में नेक्स्ट 5 years में 15 का 20 साल में वो आपके 44 lakhs आपके 75 lakhs हो गए। सो the more you wait, the more compounding effect आता है। So again, I think it takes little more time compound interest वगैरह समझने में, but 15 साल 22 आपका सिर्फ 44 हुआ, मगर नेक्स्ट 5 साल सब्र का फल मीठा होता है। नेक्स्ट 5 साल में आपका 75 हो गया, और मैं आई गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट आई थिंक यू कैन जस्ट वेट फॉर another 5 years if you put 20 का 25 हो गया तो 75 lakhs it will be 1 करोड़ 50 लाख। So the right age is now, right time is now। अगर आप 20 साल के हो तो it's very good to start now। अगले 15 साल यूं निकल जाएगा, 35 के तुम अभी हो जाओगे और 40 में तुम्हारा 1.5 करोड़ तो आराम से हो जाएगा कॉर्पस फंड। that's compounding for you। it's a snowball effect। अगर नहीं है सेविंग तो प्लीज सेव 1.5 लाख। आई एम नॉट सेइंग पीएफ में डालो, बट 1.5 लाख हर साल तो डालना है। एंड यू हैव टू वेट, सब्र का फल मीठा होता है। 15 साल तो वेट करना ही है, 15 साल बाद the compounding effects take। I think अगर किसी को और जानना है तो we can compounding interest we can do it in depth later, but आज के लिए इतना ही काफी है कि जो तुमने 15 साल में जो कमाया है वो नेक्स्ट 5 साल में तुम एकदम डबल हो जाता है। और जो जितना और वेट करो 20-25 और बढ़ता एकदम डबल हो जाता है। मतलब 75 लाख का 1.5 करोड़ बहुत जल्दी होता है। सो दैट मच इज आई थिंक आज के लिए कुछ ज्ञान ज्यादा हो गया है। सो उतना चलेगा बस। आई ऑलवेज से सारे एग्स एक बास्केट मत डालो। 7 सोर्सेज ऑफ इनकम यू शुड हैव। सेव करो 40-30-20-10 रेशियो। टाइथिंग तो भूल के भी मिस मत करना, हमेशा दो। एंड बी फाइनेंशियली, मनी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। एंड you all should be, we all should earn well, stable। वो हथौड़ा याद रखना, अगर हथौड़ा त्यागी के पास है वो तो किसी का खून नहीं करेगा, बट अगर इफ इट इज विद अ शिल्पी और इफ इट इज विद अ गुड पर्सन, सो ही विल डू वेल टू द सोसाइटी। सो आज मैं अगर दीपक या एलन को 1 करोड़ देता हूँ तो डेफिनेटली ही विल यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो यू शुड हैव दैट। सो आई थिंक डिस्कशन शेयरिंग के लिए टाइम है नहीं है, पता नहीं, बट आई थिंक आई विल स्टॉप इट हियर। एंड और आई थिंक दैट मच ठीक है। आज के लिए ज्यादा हो गया शायद। तो इकोनॉमिक्स की क्लास लगी। कभी भी हम लोग 5 मिनट स्पेयर कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है इस चीज के बारे में, तो क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट से ज्यादा नहीं है, 5 मिनट में खत्म करें कुछ भी। भैया जयशु तो मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, आज मेरे मन की बात आपने छेड़ी भैया। मैं इस बात से बहुत परेशान था, वो इसलिए क्योंकि ये बातें मुझको 2-2.5 साल से ही मुझे पता है, कई टॉक्स के द्वारा, कई रिट्रीट में वगैरह ये सुना है मैंने, तो मैं तब से ये फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जो आसपास के कुछ लोग हैं तो वो फॉलो नहीं करने देते, और वो मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उनका दिमाग में ये है कि हमारे संत गरीबी में मर गए, हमारे जो संत है कैथलिक्स के वो बीमारी में मर गए, तो वी शुड एक्सेप्ट दिस डिजीज, वी शुड एक्सेप्ट दिस क्या बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। जो भी हमारे प्रॉब्लम चल रही है हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभु यीशु गरीब था, गौशाले में जन्मा, मैं गुस्सा थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं समझा के थक गया, मैं बोला ऐसा नहीं है भाई, अगर खुद गरीब रहोगे तो कैसे प्रभु की सेवा करोगे? लोग आपको देख के बोलेंगे, जो आपने बोला कि साला इसके खुद के पास तो पैसा नहीं है, पंचायतियां कर रहा है। सही बात है। तो ये इस बात से मैं बहुत शोषित था, लेकिन आज मेरे को ये सारी बात क्लियर हो गई जो मेरे मन में थी। सब कुछ एग्जैक्टली आपने बोल दिया और मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज द लॉर्ड भैया, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया। आई लव यू टू। प्रेज द लॉर्ड। तो अगले 10 साल में करोड़पति बनना अपन को।
हूँ भैया, प्रभु मेरा करवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। Very good, very good. Praise God. मेरा सवाल है कि क्या इसका कंटिन्यूएशन सेशन हमको फिर मिलेगा? Exactly, same here. वो तो एलन भाई बताएंगे. Next meeting if we can. आप बताओ, आप बताओ. I mean, if you are really interested, थोड़ा और इकोनॉमिक्स चाहिए उसमें. अगर if you are really interested, मैक्स थोड़ा और डाल सकते हैं. हाँ भैया. हाँ भैया. मैं थोड़े क्या सजेस्ट- फ्रीलांस के ऑप्शंस अगर मौका में बता सको ना. तो मैं एक सजेशन देता हूँ भैया, संडे प्रेयर मीटिंग नहीं, लेकिन हाँ, Some other day. समवेयर इन द वीक अगर आप हम लोग डिस्कस करके अगर 1 घंटा आप दे सकते हैं समझाने के लिए कैसे वो यीशु ने कैसे कमाया, आप जो बता रहे थे वो ऑप्शंस कैसे कैसे हम आगे, है ना. तो अगर 1-2 दिन वीक डे में कभी आप निकाल सको तो मे बी वी कैन प्लान फॉर अ ट्रेनिंग लाइक दिस. बट ध्यान रखिएगा सब लोग, भैया ने क्या बोला और हमने प्रेयर मीटिंग में भी डिस्कस किया था पिछले की, जहां तुम्हारा धन है वहां मन होगा. तो अगर पैसा फोकस, अभी भैया ने बोला पैसा और सबका अगर पैसा फोकस है तो फिर मत अटेंड करना. अगर पैसे से दूसरों की सेवा करनी है, यीशु को पढ़ना है, तो फोकस करेंगे. और हम लोग इसको प्लान आउट कर सकते हैं, एक छोटा सा 2 दिन का प्रोग्राम हो सकता है, शिबू भैया ले लेंगे अकॉर्डिंग टू या इसी बात में कह रहा हूँ बिकॉज आइज़ाया की बात आई थी. तो आई एम जस्ट सेइंग इशू, आई एम टेस्टिंग हिम. सो इसको अभी मैंने इंटर्न बनाया नहीं है, अभी एथिक कोर्स में लेना है इसको. सो आई हैव गिवन हिम एवरी डे यू मेक बाइबल वर्स और यू डू बाइबल वर्सिंग का जो बनाता है. मैं ज्यादा आई डोंट आस्क हिम टू डू ऑल दिस थिंग्स, आई जस्ट गिव हिम अ टास्क. सो रिलीजियसली ही डज एवरीथिंग. क्या उसके मन में है कि मैं थोड़ा पैसा कमाऊं? ये है उसके मन में? नहीं है. वो बस चाहता है कि थोड़ा पापा थोड़ा डैड अप्रिशिएट करे. सो एवरी डे ही मेक्स 5-6 जो बना रहा है वो बना रहा है. एवरी डे ही रिलीजियसली पुट दैट एफिलिएट लिंक्स एंड ही इज ऑलरेडी. सो ऑल ही हैज इन माइंड इज उसका कमिटमेंट है और उसको पैसे से कुछ नहीं लेने देना. दैट कमिटमेंट वी नीड. दैट ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट वेदर पैसा कमा रहा है नहीं कर रहा. बट he doesn't even know that affiliate links काम कर रहे नहीं. But every day, every week he does that. He is doing that. So that kind of commitment is needed. He is not focused. All he wants is कि पापा बस thanks बोल दे या पापा encourage कर ले उसको, बस वो ही चाहता है. So I am testing him and he's doing it for the past 1 month or 2 months and then we'll see. So what I'm trying to say is that kind of commitment कि पैसा कमाना इसके मन में तो नहीं है और ना इसके मन में कभी होगा. That it's good that he start. So आपके मन में भी, I mean that is not the focus, right? That is कि कुछ नया सीख ले, कुछ नया टैलेंट और आगे बढ़ा सके. Definitely he'll earn when he was 20-25 जब हो जाएगा तो अच्छा earn कर लेगा. But अभी focus is talent और कुछ नया सीखने का. So that, with that mentality, if we focus, that will be very good. Alan. Bhaiya, I want to ask something. Like I recently started my blog, where even I started blogging on Instagram also. I opened my new account there. So somebody, my teachers and few people told me that you should start promoting it. So for promotion, they ask for spend some money. But I was not sure that should I pay it or not, because I'm not interested in that. I just like let people read. If they want to like it, let them like. If it's not like that, it's okay. It's nothing in that money. So is that thinking is wrong or right? I have the source that I can earn money from that. Yeah, Jennifer wants to add something. अच्छा, what I would say is कि अगर आपने अभी शुरू किया है तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2 years के लिए आप कमाना तो भूल ही जाओ. But focus on content. What you are writing, it should be very good in quality. What you are posting, very good in thing. So it all takes. If you have seen an iceberg का अगर आपने एक shape देखा है तो समुद्र के ऊपर से जो iceberg है, it's just a tip, but it's a massive thing in below the ocean. So बहुत it takes lot of effort to get paid in blog and all those things.
So at least 2 years, every day, if you can post things, you can write things, that is what your focus should be. And ads and revenue जो जो आएगा वो तो बाद में आएगा ही. What I would suggest is next 2 years, every day without fail, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, but I Shalini will write. कोई पढ़ रहा है नहीं, but I Shalini will post. So I think you should have lot of, I mean, it take Instagram में तो followers जितने होंगे उतने अच्छे हैं, but it takes times, it takes effort. So 1 year तक तो whether I'll be earning on, I mean, you have to be a superstar like some film stars to start earning. You should have a lot of followers, but at least 1 year tak keep writing and keep improving your writing skills. And that is what. And paid promotions you will get only when you have a lot of followers. So Okay. what I would suggest is ki at least 1 year, agar if you are focused, you are passionate, forget about the money. But if you generally want people to read and get help from your content, so write till at least 1 year or 2 years. And as they say, content is king. Your content should be very good and whatever you're writing. So I would suggest that. Okay, thank you भैया. हमारे पास समय खत्म हुआ. तभी भी शुड वी कंक्लूड या फिर कुछ पूछना है? We will ask in next session. Next session also, and everybody knows his phone number, so we can disturb him also personally. तो आइए आज हमने जो कुछ सीखा उसको सम अप करते हैं कि आज हमने धन के बारे में सीखा कि धन इज अ टूल, मतलब एक औजार है हमारे हाथ में. हमारा स्वामी नहीं होना चाहिए लेकिन औजार होना चाहिए, ये हमने सीखा. और ऐसा कहीं आपको ध्यान रखना है कि जैसे भैया ने बताया कि मनी इज बैड, ऐसा नहीं है, बट लव ऑफ मनी इज बैड. हमारा फोकस मिशन में होना चाहिए, प्रभु की योजना में होना चाहिए. सिर्फ पैसा पैसा दिक्कत देगा, सिर्फ प्रभु की योजना वो हमें फल देगी, तो फिर पैसा अपने आप पीछे पीछे चला आएगा. तो ये हमें सीखना है. तो आइए हम हाथ जोड़े प्रार्थना करें ईश्वर से. हमें इतना सुंदर मैसेज देने के लिए, हमें हमारे मन में बहुत कुछ हिल गया है, बहुत कुछ उथल पुथल हुई है वचन सुनकर, ईश्वर की बातें सुनकर. आइए हम उस उथल पुथल में आत्मा को आमंत्रित करें, हमारे मन में आ जाए. और जहाँ कहीं भी डिस्टर्बेंस है, जहाँ कहीं भी आज ईश्वर का वचन ने छुआ है, वहां से चीजें खुरेदी हैं, उस चीजों में आकर आत्मा बस जाए, ताकि हमारे कण कण में आत्मा और आत्मा का फोकस, आत्मा का मिशन हमारे जीवन में रहे. ये पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे फाइनेंसेस में खास करके. आजकल पूरा समाज हमें कहता है कि हमारा पूरा जीवन पैसे के आसपास होना चाहिए. 60 साल के उम्र तक नौकरी करनी चाहिए तो ही स्टेबिलिटी होती है. पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में आके ये सभी सोशल नॉर्म्स को आप दूर करें और हमारा फोकस क्लियर करें कि हमारा फोकस सिर्फ आप है, आपका राज्य है, आपके पुत्र को जानना है और आपके वचनों को जानना है. आत्मा हमारे जीवन में आइए और हमारे जीवन से जो कुछ टच होता है उन सबको आप छू लीजिए. हमारे जीवन में हमारा परिवार है, हमारी नौकरी है, हमारी पढ़ाई है, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं. और जहाँ कहीं भी परेशानियां हैं जो हमें नीचे खींच रही हैं, उन सब में आ जाएं. बीमारियां हैं, उन सब में आ जाएं. सब कुछ हमारे जीवन में हम आपको समर्पित करके प्रार्थना करते हैं. हे माता मरियम, आप पवित्र आत्मा की दुल्हन रही हैं. आप पवित्र आत्मा से आपने प्रभु यीशु को धारण किया है. हे माता मरियम, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हम में भी आ जाए और हम ही प्रभु यीशु को कंसीव करें हमारे हृदय में, हमारे मन में और खास करके हमारे पॉकेट में. माता मरियम, हम सब के लिए, हम सबके परिवारों के लिए, हम सबके स्ट्रगल्स के लिए आप प्रार्थना कीजिए. हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आपसे. प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है. प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में और हे सन मरिया, और हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय. आमीन.
हमारे हमारे फाइनेंसेस में, हमारे इंटेंशंस में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। खुद को ब्लेस करें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आमीन। तो जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। तो हम अगले संडे मिलते हैं फिर से। ओके।